हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सरोज सर। हमारा यूट्यूब चैनल सॉम एंड सॉल्व को स्वागत कर रहा हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन एग्जाम जैसे सीयूईटी, गेट, आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर cos of 2 into dy by dx equal to 0 is. Option is given. Option A, 1 plus C2 power. Option B, C1 plus C2 power minus 2x. Option C, C1 plus C2x into e to the power minus 2x. Option D, this is a ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हम उसको सॉल्व करेंगे। उनका राइट साइड जीरो है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो क्योंकि राइट साइड जीरो है। हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। लेट अस टेक d इक्वल टू डी बाई डी एक्स। द इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर वाई प्लस ऑफ टू डी वाई इक्वल टू जीरो। अतएव डी स्क्वायर प्लस ऑफ टू डी होल इंटू वाई इक्वल टू जीरो। y कैन नॉट बी जीरो क्योंकि सॉल्यूशन मीन्स y। अतएव ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस टू डी इक्वल टू जीरो, डी होल इंटू डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। डी का वैल्यू क्या है? 1 इज जीरो, अनदर इज माइनस 2। यहाँ पर रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे। सी एफ का वैल्यू कितना है? C1 e टू दी पावर 0x प्लस ऑफ C2 e टू दी पावर माइनस 2x। हमारा पीआई जीरो है। फाइनली वी कैन से सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई। सी एफ इक्वल टू कितना? e टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1, दैट इज द C1 प्लस ऑफ C2 e टू दी पावर माइनस 2x। क्योंकि हमारा पीआई जीरो है, फाइनली वी कैन से आवर सॉल्यूशन इक्वल टू C1 प्लस C2 into e to the power minus 2x. Right answer equal to option B. This is a question based on higher order ordinary differential equation based on complementary solution. Next question, question number 2 solve करेंगे। Question number 2, solution of d square y by dx square plus of 9y equal to 0 is. Option A, y equal to C1 e to the power 3x plus C2 e to the power minus 3x. Option B, y equal to C1 plus C2x into e to the power minus 3x. Option C, y equal to C1 cos 3x plus C2 sin 3x. Option D, y equal to C1 plus C2x into e to the power 3x. In all option, the value of C1 and C2 known as the arbitrary constant. Instead of C1, C2, we can write A, B, C, D. We can write. Now, we have to find solution. Let D equal to D by dx. If D equal to D by dx, the equation becomes d square y plus of 9y equal to 0. Finally, d square plus 9 whole into y equal to 0. हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है। फाइनली d इक्वल टू माइनस 9 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i. I stands for imaginary number. I stands for imaginary number. Finally, we can write CF equal to y क्योंकि pi equal to 0, right side 0 means pi equal to 0. Finally, we can write CF equal to y C1 cos of 3x प्लस ऑफ C2 sin 3x. यहाँ पर हमारा जो रूट आ गया दैट इज इक्वल टू
imaginary. If the roots are imaginary, at that case we can write the complementary solution, that is equal to c1 cos 3x plus c2 sin 3x. This is one of the condition for roots का equation है. We can say answer equal to how much? Finally we can say answer equal to c, y equal to c1 cos 3x plus c2 sin 3x. Then come to our next question, question number 3. Question number 3, let us y double dash loss of y dash plus y equal to 0. Solution of equation is option A, y equal to e to the power minus x by 2 whole into c1 cos of root 3 x by 2 plus of c2 sin of root 3 x by 2. Option B, y equal to e to the power x by 2 whole into c1 cos of root 3 by x by 2 plus of c2 sin of root 3 x by 2. Option C, y equal to e to the power root 3 x by 2 whole into c1 cos of x by 2 plus of c2 sin of x by 2. Option D. Now see, question is given y double dash plus y dash plus y equal to 0. This is a second order differential equation. हम उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन का राइट साइड 0 मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0. नाउ वी हैव टू सॉल्व. लेट अस y dash equal to, that is equal to dy, y double dash equal to d square y. If you replace the value, it will be how much? D square y plus of dy plus y equal to 0, d square plus d plus 1 whole into y equal to 0. हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू d square plus d plus 1 equal to 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. x का वैल्यू कितना था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, at that condition the solution will be like this: ax square plus bx plus c equal to 0. x का वैल्यू कितना है? x equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a. यहाँ पर दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. यहाँ पर d स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 है, d का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू 1, c आल्सो 1. d का वैल्यू कितना आएगा? d इक्वल टू हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस 1 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज इक्वल टू कितना? माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज इक्वल टू कितना? माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 का रूट ओवर इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. दैट कैन बी रिटन माइनस ऑफ 1 बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 i बाय 2. यहाँ पर one of the condition आ गया, that is the if roots are complex, at that condition we have to write complementary solution. complementary solution कितना होगा? अतः CF इक्वल टू y, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, अतः जब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, at that condition solution इक्वल टू y इक्वल टू CF होगा. CF इक्वल टू y कितना आ गया? e टू द पावर माइनस ऑफ x बाय 2 होल इंटू c1 cos ऑफ रूट 3 बाय 2x प्लस ऑफ c2 sin ऑफ रूट 3 बाय 2a. दिस इज इक्वल टू आंसर. हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाय 2 c1 cos रूट 3x बाय 2 प्लस c2 sin रूट 3x बाय 2. Then come to our next question, that is the question number 4. Question number 4 given solution of y dash plus 2i equal to 0, y of 0 equal to 3 is option A, y equal to a into e to the power minus 2.
ऑप्शन बी y इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर 2x, ऑप्शन सी y इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x, ऑप्शन डी y इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3. This question is known as the initial value problem. This is not the initial value problem. Why initial value is given? Initial value given to find constant of the equation. This is a first order differential equation. If we solve this equation, we get one constant. ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो कांस्टेंट आएगा. तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इसीलिए वन इनिशियल कंडीशन इज गिवन. y ऑफ 0 इक्वल टू 3 मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू, हम वो जो इनिशियल कंडीशन दिया है हम यूज करेंगे आफ्टर सॉल्यूशन. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे. दिस क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना आएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पर y डबल डैश मींस इज द d cos 2 इक्वल टू 0. दिस इज नॉट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. फाइनली d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू इक्वल टू -2. वी कैन राइट CF इक्वल टू y, क्योंकि PI इक्वल टू 0, राइट साइड इक्वल टू 0 मींस PI इक्वल टू 0. फाइनली CF इक्वल टू y इक्वल टू C1 e to the power -2. This is the solution. If initial condition is not given, at that condition solution equal to C1 or C per -2x, our answer equal to कितना हो गया? That is equal to A. If initial condition is not given. In this problem, initial condition given y of 0 equal to, हम initial condition यूज करेंगे. इनिशियल कंडीशन क्या दिया है? इनिशियल कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 3, मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू 3 होगा. x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा. हम पुट करेंगे, y में 3 पुट किया, x में 0 पुट करेंगे तो c1 e टू दी पावर 0, समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1. फाइनली 3 इक्वल टू कितना? c1. c1 का वैल्यू 3 आ गया. हमारा सॉल्यूशन क्या था? हमारा सॉल्यूशन था c1 e टू दी पावर -2x. Instead of C1, we can write 3 into e to the power -2x. This is the solution of that equation. Finally, answer equal to, we can say answer equal to this question, one of the initial value problem. Next question solve करेंगे, question number 5. Question number 5, this is also initial value questions. Question is given solution of y double dash plus 4y equal to 0. y of 0 equal to 1, y dash of 0 equal to, the solution is, the solution option A. Option A given, the solution is given, option is given, option A. Option A given, this is equal to cos 2x plus of sin 2x. Option B, that is equal to 3 cos 2x plus of sin 2x. Option C, that is the cos 2x plus of 3 into sin 2x. It's a very important question. Option D, that is equal to none. Question में initial condition given, this is a second order differential equation. If you solve this second order differential equation, we can get two constant. To solve that two constant, two initial condition given, one condition is given y of 0 equal to 1. उनका मतलब है जब x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू 1 होगा. Another initial condition given y dash of 0 equal to 3. जब x का वैल्यू 0 होगा y dash का वैल्यू 3 होगा. y dash मतलब dy by dx का वैल्यू. फर्स्ट हम एज यूजुअल सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हम इनिशियल कंडीशन करेंगे. नाउ वी हैव टू सॉल्व. इफ यू टेक d इक्वल टू d by dx, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना आ रहा है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू y डबल डैश मींस स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0. फाइनली वी कैन से d स्क्वायर इक्वल टू -4 इंप्लाइज d का वैल्यू है -4 का -4 का रूट ओवर कितना? प्लस माइनस y. फाइनली वी कैन से अतएव y इक्वल टू CF
क्योंकि Pi इक्वल टू 0, दैट इज द C1 cos 2x cos of C2 sin 2x. This is the solution if initial condition is not given. If initial condition is not given, the solution. In this question में initial condition दिया है. अब हम कैलकुलेट करेंगे C1 एंड C2 का वैल्यू, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे. कंडीशन वन क्या है? y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है? 1 है. करेंगे y का वैल्यू 1 पुट किया, C1 cos 0 cos of C2 sin 0. sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू कितना है? दैट इज इक्वल टू 1. यू हैव टू रिमेंबर, sin 0 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0, cos 0 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1. नाउ सी, sin 0 का वैल्यू 0 है, cos 0 का वैल्यू 1. फाइनली वी कैन से C1 का वैल्यू 1 आ गया. 1 का वैल्यू 1 आएगा. चले, दैट मींस we can put it that is equal to what is the value of C2, we can put it. Now we have to use condition number 2. condition number 2 क्या दिया है? x का वैल्यू 0 होगा तो y डैश का वैल्यू 3 होगा. फर्स्ट वी कैलकुलेट y डैश का वैल्यू कितना आ रहा है. y डैश मतलब डेरिवेटिव. यहां पर cos 2x का डेरिवेटिव कितना है? -2 sin 2x. दिस इज इक्वल टू -2 C1 sin 2x. सिमिलरली sin 2x का डेरिवेटिव कितना है? दैट इज द 2 into C2. Now replace the value. At x equal to 0, y dash का वैल्यू कितना? y dash का वैल्यू 3 है. 3 इक्वल टू दैट इज द माइनस ऑफ 2c1 into sin 0 प्लस ऑफ 2c2 into cos 0. ऑलरेडी वी नो cos 0 का वैल्यू कितना है? 1, sin 0 0. फाइनली वी कैन से 3 इक्वल टू 2c2. दैट मीन्स C2 इक्वल टू 2. दैट मीन्स हमारा C1 का वैल्यू 1 आ गया, C2 का वैल्यू 3/2 आ गया. फाइनली वी कैन राइट द सॉल्यूशन. हमारा सॉल्यूशन क्या था? हमारा सॉल्यूशन था y इक्वल टू C1 cos 2x प्लस ऑफ C2 sin 2x था. C1 का वैल्यू कितना आ गया? C1 का वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू वी कैन से cos 2x. C2 का वैल्यू कितना है? दैट इज इक्वल टू 3/2 sin 2x. नाउ हम ऑप्शन चेक करेंगे. इफ यू चेक द ऑप्शन ए में दैट इज द 3/2 टर्म नहीं है. ऑप्शन बी में ऑल्सो 3/2 टर्म नहीं है. ऑप्शन सी में 3/2 टर्म नहीं है. आंसर इक्वल टू नॉन ऑफ दिस. दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. दिस इज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हमने डिस्कशन किया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लीमेंटरी सॉल्यूशन के बारे में. हम नेक्स्ट क्लास में हम पीआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. आशा करता हूं ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू.